हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेशनल रोज। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं इंग्लिश ग्रामर का लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसका टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? It definition we can write that well as words. Words are divided into different kinds or classes. What is parts of speech? Parts of speech definition can be written as well as words are divided into different kinds or classes is known as parts of speech. शब्द जो है वो डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके में बांटे गए हैं, अलग अलग लेवल्स पे बांटे गए हैं, अलग अलग उनके तरीके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. देयर आर we all know as there are 8 number of parts of speech. Okay, there are 8 number of parts of speech. First is noun. Okay, second do we call as pronoun. Third is verb. Fourth is adverb. Fifth is going to be as well as adjective. Sixth is preposition. Seventh is conjunction. And my last one is interjection. These are 8 parts of speech. These are each part of a speech. First we call as noun, second we call as pronoun, third is verb, fourth is adverb, fifth is adjective, sixth is preposition, and seventh is conjunction, and eighth number is interjection. We are going to teach first noun. Our first topic is going to be noun. What is noun? आपको ये बहुत बार रटवाया गया कि नाउन क्या चीज है. नाउन इज a word used as the name of a person, place, or things. Okay. What is noun? Noun is a name of a person, place, animal or thing. जैसे मैं किसी भी व्यक्ति का नाम ले लूं, जैसे मैं ले सकती हूँ एग्जाम्पल में. I can take my example that Akbar was a great king. Here the Akbar we underline as because it is a name of a person. And the definition tells us that किसी भी
आदमी का नाम, जानवर का नाम, किसी भी सामान का नाम और कुछ अदर कोई अलग चीज का भी नाम को हम लोग बोलते हैं नाउन। तो यहाँ अकबर हो गया नाउन, क्योंकि एक पर्सन का नाम है और डिफिनेशन के अनुसार पर्सन भी इसमें एक्टिवेट है। सो अकबर इज द नाउन हेयर। So for the next examples, I can also tell that for next example, we can write as Kolkata is on Hooghly. So our next example is as Kolkata is on Hooghly. So here the Kolkata we underline and the Hooghly we underline because Kolkata is a name of a place. Okay, Kolkata is the Hooghly is a name of a river. So according to noun, these words are known also as noun. So for exampleation, only this category is good, better. Okay. सो किसी भी आदमी का नाम, जानवर का नाम, किसी भी सामान के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं. सो एज वी कैन टेल एज रिवर ऑल्सो, वी कैन एड इट ना. सो कोलकाता इज द नेम ऑफ अ प्लेस एंड हुगली इज द नेम ऑफ अ रिवर, सो इट कैन ऑल्सो बी एज अ नाउन. ओके. सो एंड माई नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी pronoun. That what is pronoun? Okay. The definition is a word used as instead of noun. Okay. Pronoun means that pronoun का definition ये बताता है कि जो शब्द noun की जगह पे यूज होता है, जो शब्द noun की जगह पे यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं pronoun. As we Hindi we can say as संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम बोलते हैं. Okay. So this is an example that pronoun का example I can take as well. Example. Example. John is absent. John is absent. Okay. Because he is ill. Because he is ill. Okay. So here the pronoun we instead with use as it. Because. Okay. Here the pronoun we come as because. Okay. We use that is the name of the noun place. We use that pronoun verb. Okay. So आपको समझ में तो आ ही गया होगा. तो my next example is going to be that the books. So the written some wrong, so I will write again it. The books where you left him. Okay. So here the pronoun comes where. Where. Okay. So noun की जगह पे यूज हुआ वो सब. Okay. So like we say that the books where you left him. Books वहां था जहां तुम उसे छोड़ दिए. We use at the books where at the library where you left him. So why do we not use? Because pronoun में बताता है कि noun की जगह पे जो शब्द यूज होता है. Okay. So going to be the next. My third one is verb. What is verb? Okay. What is verb? It is a doing word. It is a doing word which describe action. Okay.
सो वर्ड्स क्या चीज होता है? वर्ब एक डूइंग वर्ड्स है, कोई काम करने का चीज। वो आपको हम लोग बोल सकते हैं लाइक वी से वर्ब एज डूइंग वर्ड्स, सेइंग वर्ड्स, बीइंग वर्ड्स, हैविंग वर्ड्स। वी कैन से विद एग्जांपल्स ऑफ दिस आल्सो। ओके, सेंटेंस में जैसे भी दिया रहेगा वैसे हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ब को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये डूइंग वर्ड से, ये बीइंग वर्ड से, हैविंग वर्ड से और अदर। सो वर्ब इज ऐसा शब्द है जो कोई एक्शन को बताता है, एक डूइंग वर्ड से जो एक्शन को बताता है। लाइक वे फॉर द एग्जाम्पल we said that we say that Ram wrote letter to her sister. So here the verb come as wrote. Why? बिकॉज यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है, यहाँ पे कोई काम किया जा रहा है। ओके, सो कोई भी शब्द यहाँ काम किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। ओके, सो विद द नेक्स्ट एग्जांपल आई कैन टेल यू दैट चिल्ड्रन drank the milk. So here we underline drank. Okay, sorry. Oof. Okay, now here we underline drank. Why? Because here the work is done. यहाँ काम किया जा रहा है ड्रिंक करने का। ओके, तो जहां पे भी कोई काम बता रहा है, डूइंग वर्ड्स बता रहा है, वहां काम किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे वर्ब। ओके, so let's start with the next one. So next is adverb. Next is adverb. What is adverb? It adds meaning. It adds meaning of a word and tells how the thing is done. ओके, तो वो एडवर्ब क्या होता है? सो एडवर्ब एक मीनिंग ऐड करता है किसी भी सेंटेंस में और वहां पे बताता है मीनिंग ऐड करने के बाद कि वह काम हुआ है। ओके, वह काम हुआ है कि एडवर्ब कोई सेंटेंस में जाकर मीनिंग ऐड कर देगा और ये बताता है कि वहां पे कोई काम हुआ है। ओके, लाइक फॉर विद द एग्जांपल्स वी कैन से एज मैरी sing sweetly. Mary sing sweetly. So here the adverb is sweetly. Why? Because यहाँ पे बताया सेंटेंस में एक शब्द जुड़ा और वो बताया कि वो चीज हुआ है। Okay. So with the next example, we can say as Ashok came yesterday. Ashok came yesterday. So here it will be came. Why? क्योंकि ये सेंटेंस पे बता रहा है कि came यहाँ बोला तो वहां आया था, तो इट इज एडवर्ब। ओके, जहां पे हम लोग को पता चले कि वह काम वर्क इज डन। ओके, came yesterday. ओके, सो came आया था वो। सो जहां पे शब्द में हम लोग को पता चले कि वह वहां पे मीनिंग ऐड करता है और वो बताता है कि वो काम हुआ था, वो काम कैसे हुआ था।
So with the next we can start well as adjective. So what is adjective? So adjective, it describe a noun. It describe a noun and a pronoun or add something to meaning. ओके, सो एडजेक्टिव क्या होता है? ये डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को, और इसमें कुछ वर्ड्स ऐड करता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव होता क्या है? ये एक नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है और एड्स टू मीनिंग, और उसमें मीनिंग एड्स करता है। ओके, सो नेक्स्ट विद द एग्जांपल वी कैन से एज I was very afraid. तो यहाँ पे मीनिंग ऐड किया कि मैं बहुत डरा हुआ था। नाउन की जगह पे ये मीनिंग ऐड किया अफ्रेड। अफ्रेड यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। अफ्रेड हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन की जगह पे जो भी शब्द मीनिंग ऐड करता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। फ्रॉम द एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड वेल एज। सो आवर नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपोजिशन? व्हाट डू यू मीन बाय प्रीपोजिशन? It stands relation between noun and pronoun. It adds relation between noun and pronoun. So preposition किसी भी चीज का रिलेशन बताता है। नाउन और प्रोनाउन का वो रिलेशन बताता है कि वो पर्सन डिनोट करता है कि वो पर्सन स्टैंड इन रिलेशन, वो रिलेशन में स्टैंड है और किसी और चीज में। सो प्रीपोजिशन मीन्स relation between the noun and the pronoun, what they stand for. Okay, next for we take the example, we can say as that there is a cow in the garden. So here the preposition come that in. Why? क्योंकि वो रिलेशन बताया नाउन और प्रोनाउन के बीच में कि जो गाय है वो गार्डन में खड़ा है। ओके, क्योंकि वो रिलेशन बता रहा है नाउन और प्रोनाउन के बीच में, इसलिए। सो प्रीपोजिशन होता क्या है कि वो नाउन और प्रोनाउन के बीच का रिलेशन बताता है। लाइक फॉर आई एम एक्सप्लेनिंग यू विद एग्जांपल्स दैट वे ओनली। ओके, सो नेक्स्ट इज आवर कंजक्शन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कंजक्शन? कंजक्शन का मीनिंग होता क्या है? It join words or sentence. Okay, so ये जो है वो एक शब्द ज्वाइन कर देता है। ज्वाइन द वर्ड, सेंटेंस में कोई भी एक वर्ड ज्वाइन कर देता है। So like for the example we can say Rama and Hari are
are friends. Okay, so here the preposition comes and because it adds meaning to that. कि कंजक्शन का मतलब ये होता है जो शब्द में मतलब सॉरी सेंटेंस में कोई भी वर्ड ज्वाइन कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं कंजक्शन. ओके, सो आपको तो पता ही होगा, समझ में आपको आ ही चुका होगा. सो गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपिक एज वेल एज इंटरजेक्शन. What is interjection? A short expressions is called interjection. सो कोई भी छोटा छोटा एक्सप्रेशन, ओके, कोई भी छोटा छोटा एक्सप्रेशन जो हम लोग को अदर से मतलब अचानक से आती है, अचानक से जो हम लोग को आती है मतलब एक्सप्रेशन जो आती है हम लोग को अचानक से एक्सप्रेशन जो आते हैं. ओके, लाइक वे फॉर द एग्जांपल वी कैन सी एज यस शी इज डेड. ओके, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के तौर पे नहीं, ये इंटरजेक्शन के तौर पे बोला गया है. एक शॉर्ट एक्सप्रेशन जो आती हैं. ओके, शॉर्ट सॉरी वेल शॉर्ट एक्सप्रेशन जो हम लोग को आती हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन. ओके, जैसे हम लोग बोल सकते हैं हरी वी हैव वॉन द गेम. सो अंदर से हम लोग को एक सडन और शॉर्ट एक्सप्रेशन आया कि हरी जल्दी करो, वाह हम लोग गेम जीत गए. ओके, so thank you for my English class. Meet you well as soon in the next. Thank you.